Hello everyone, welcome to Elite Scripts. So we are back with another question on para completion, which we have already given to you. So let's begin the question. So this is the paragraph that is given to us, and this is the sentence that we have. And we have to fill this sentence in the blanks, any one of the blank where we think that the sentence fits the best. So the sentence is, easing the anxiety and pressure of having a big day is part of the appeal for many couples who marry in secret. Now, remember this, that by looking at this sentence where we are saying that it is part of the appeal for couples who marry in secret, मतलब हम इस बारे में already बात कर चुके हैं, तभी हम the use कर रहे हैं. We use the to refer to something that we've already talked before. तो हम कुछ बात कर चुके होंगे marry in secret की, उसके बाद we will be talking about this. So let's see the paragraph. Wedding season is upon us, and after 2 years of COVID chaos that saw nuptials scaled back, you may think the temptation would be to go all out. But instead of expanding the guest list, many couples are opting to have entirely secret ceremonies. So अभी ये जो हमें given है, beginning में क्या है, wedding season has come, and after COVID there's a there's a temptation that there will be more weddings, more pomp and show, but ऐसा नहीं हो रहा है. Couples are opting to have secret ceremonies. तो जो हमें sentence given है कि there's a temptation for to go all out, but यहाँ पर हमें blank दिया हुआ है, and then we have but. Now remember, but can be used only when I want to use something which is in contradiction to a thing which has been talked before. तो मतलब ऐसा नहीं हो रहा है. Couples instead of going for large grand weddings, they are going for secret weddings, secret ceremonies. तो मतलब यहाँ पर ये एंजाइटी और प्रेशर के बीच में बात अननेसेसरी बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है. ऊपर हमें बताया गया कि वेडिंग सीजन में टेम्पटेशन होनी चाहिए टू हैव अ ग्रैंड वेडिंग बिकॉज कोविड के बाद हो रहा है, इतने गैप के बाद. बट तो मतलब उसका ऑपोजिट, और फिर बट इट्स नॉट हैपनिंग, वो सीक्रेट वेडिंग्स प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ग्रैंड वन. तो यहाँ पर वन में ये एंजाइटी और प्रेशर, कोई ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है. और द अपील फॉर मैनी हु मैरी इन सीक्रेट, अभी तक तो देखो यहाँ तक फर्स्ट से पहले तो हमने बात भी नहीं की है कि सीक्रेट वेडिंग होनी चाहिए, सीक्रेट सेरेमनी होनी चाहिए. तो द अपील की तो बात भी नहीं हो सकती. सो फर्स्ट पे तो ये पक्का ही नहीं आएगा सेंटेंस. सो फर्स्ट इज आउट. ऑलराइट, क्योंकि अब हमने फर्स्ट के बाद ये मेंशन किया कि कपल्स आर ऑप्टिंग फॉर सीक्रेट सेरेमनीज. उसके बाद ही तो आप उस अपील को द कह सकते हो ना. तो इसलिए फर्स्ट पे तो पक्का नहीं आएगा. फर्स्ट इज आउट. With COVID case numbers remaining high and the cost of living crisis, meaning that many couples are feeling the pinch, it's no wonder that some are less than eager to send out invites. तो अब ये बता रहा है reason, it is telling the reason basically. तो ये first blank था, इसको हम out कर चुके हैं. अब हमारे पास है reason for having a secret ceremony, why there should be few invitations to be given and not many. So they are eager to send few invites. Why? Because the cases are still high and the cost is high. तो हमें ये रीजन दे दिए गए हैं. फिर अब सेकंड ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद प्लस तभी यूज करोगे जब सेम चीज को ही आप एक्सटेंड कर रहे हो. प्लस इट कांट हर्ट दैट इन सेलिब्रिटी सर्कल्स गेटिंग मैरिड इन सीक्रेट इज ऑल द रेज. मतलब प्लस इसके अलावा मतलब इट्स नॉट समथिंग टू फील बैड अबाउट, बिकॉज सेलिब्रिटीज भी आजकल, सेलिब्रिटीज भी जो हैं वो लोग भी देयर इज अ क्रेज फॉर सीक्रेट वेडिंग्स. तो अब यहाँ पर सेंस बन सकती है क्योंकि यहाँ पर हम रीजंस की बात कर रहे हैं कि व्हाई दे शुड नॉट हैव अ ग्रैंड वेडिंग. और ये भी एक रीजन ही है कि एग्जाइटी और प्रेशर होता है. तो हमने एक रीजन देखा केसेस ज्यादा है, दूसरा रीजन था कॉस्ट हाई है, फिर एक रीजन ये हो सकता है कि एंजाइटी और प्रेशर भी होता है अगर आप बड़ा सब कुछ अरेंजमेंट करते हो. तो प्लस सेलिब्रिटीज में भी अब देखो कोई इशू नहीं है, वो भी ऐसे ही करते हैं. तो सेकंड इज ऑलराइट, वी आर नॉट एलिमिनेटिंग इट. अब थर्ड पे क्या है? थर्ड इसके बाद है सेलिब्रिटीज दे आर ऑल्सो गेटिंग मैरिड इन सीक्रेट. तो उसके बाद अब है थर्ड इज बिटवीन सेलिब्रिटीज थिंग, then we have third, and then we are having, I would definitely say that secret weddings are becoming more common, says Landis Bajor, the founder of a therapy practice which specializes in helping brides and grooms manage wedding stress. People are looking for ways to get out of the spotlight and avoid the pomp and circumstance of weddings. Fourth, they just want to get to the part where they are married. अब इसके बाद देखो, थर्ड के बाद हमें कोई स्टेटमेंट दी हुई है किसी
person ki, and she is telling, she is a founder of something, some practice where they help brides and grooms manage the stress. So what she's telling that, people are going for secret weddings. And why they're going for it? Because, they want to prevent that spotlight. बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो, बहुत ज्यादा ग्रैंड अरेंजमेंट्स, उनको ये अननेसेसरी जो बहुत बड़ी ओकेजन बन जाती है, बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं, that they don't like it, and they just want to be, talk about, or they just want to be part of that main ritual where they're getting married. बाकी सब चीजों से वो हटना चाहते हैं. So, fourth, अभी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. Before third, we can actually eliminate fourth. Why? Because फोर्थ से पहले और जो फोर्थ के बाद बात हो रही है वो सेम बात हो रही है. बीच में अननेसेसरी हम एंजाइटी नहीं ला सकते. वो फोर्थ से पहले क्या हो रहा है कि दैट दे वांट टू अवॉइड द स्पॉटलाइट थिंग एंड द पॉम्प एंड सर्कमस्टेंस, जो अननेसेसरी बहुत चटक भटक होती है, वो अवॉइड करना चाहते हैं. और फोर्थ में दे जस्ट डायरेक्टली वांट टू गो टू द पार्ट वेयर दे आर मैरिड. सो ओनली जो मैरिड वाली सेरेमनी होती है, ओनली द मैरिज रिलेटेड थिंग्स, दे ओनली वांट टू हैव दैट थिंग. कोई भी अननेसेसरी ये पॉम्प एंड शो वो पसंद नहीं करते. अब ये और ये बात एग्जैक्टली सेम है. तो फोर्थ में हम अननेसेसरी बीच में एंजाइटी और प्रेशर की बात करेंगे. इट इज अननेसेसरी ब्रेकिंग द फ्लो, क्योंकि फोर्थ के आगे और पीछे जो बात है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. तो बीच में अननेसेसरी हम कोई और पॉइंट नहीं लाना चाहते. सो फोर्थ इज ऑल्सो आउट. अगर हम उसको लेकर आएंगे तो सब फ्लो बिगड़ जाएगा. कि पहले हम कह रहे हैं कि दे वांट टू, दे डोंट वांट स्पॉटलाइट एंड दैट पॉम्प एंड शो, फिर कहेंगे एंजाइटी और प्रेशर, फिर से वही बात करें कि दे डोंट वांट स्पॉटलाइट, दे जस्ट वांट दैट पार्ट वेयर दे आर गेटिंग मैरिड. सो फोर्थ इज ऑल्सो आउट. सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड. सेकंड काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज वो रीजंस की बात कर रहा है कि व्हाई नॉट टू हैव अ बिग ग्रैंड वेडिंग. और इधर सेकंड भी मतलब ये जो सेंटेंस है हमें, दैट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रीजन फॉर नॉट हैविंग अ ग्रैंड वेडिंग. और थर्ड में थर्ड में भी आ सकता है बिकॉज हम कंटिन्यू रीजंस ही कर रहे हैं. बट देन अनदर थिंग, थर्ड के बाद सडनली हम उस बारे में बात कर रहे हैं जिसमें वो उसमें आ गया है कि they're talking about somebody who's telling कि people are like preferring secret weddings because they do not want that spotlight. So if I have to select between second and third, some people can think that third can be the answer, but second is a better option. And why? Because just see yourself कि किसमें फ्लो बेटर आ रहा है. द पैराग्राफ हैज टू बी कोहेरेंट, राइट. अब खुद देखो कि सेकंड और थर्ड में किसमें पैराग्राफ ज्यादा कोहेरेंट लग रहा है. अगर मैं सेकंड, ये है सेकंड में अगर मैं ऑप्शन फिल करती हूँ, और ये है इसमें मैं अगर थर्ड में ऑप्शन में फिल करती हूँ से, तो सेकंड में क्या होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस फॉर नॉट हैविंग दैट वेडिंग. कि पहले तो केसेस आर हाई, देन आई एम सेइंग द कॉस्ट इज हाई, देन आई एम सेइंग कि कपल्स को एंजाइटी और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है. ये रीजंस बता दिए. उसके बाद कह रही प्लस इज समथिंग, you supplement a thing rather than a main thing. प्लस मेन थिंग नहीं है वो. प्लस सेलिब्रिटीज आर ऑल्सो गेटिंग मैरिड इन सीक्रेट. तो सेलिब्रिटीज भी आजकल यही कर रहे हैं. अब एक चीज देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, आप कोई भी पॉइंट अपना ओपिनियन रखते हो, नेचुरली आप पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखते हो, फिर आप बाद में बोलते हो ना कि एडिशनली ये भी देखो, वो लोग भी तो ऐसे ही कर रहे हैं. तो celebrities are also doing it is not the core reason for couples not doing it. Celebrities तो बहुत कुछ करते हैं. You can't do everything. So that is not your core reason for not having a grand wedding. Anxiety and pressure ease हो जाता है. That is a very important reason for not having a grand wedding. तो ये solid reasons हैं और ये एक साथ आ गए. फिर हम बाद में कह रहे हैं कि प्लस देखो celebrities भी यही कर रहे हैं आजकल. तो एक एडिशनल रीजन है. अगर मैं थर्ड में ऐसे करूं, थर्ड में मैं बोलूं देखो केसेस बहुत हाई है, कॉस्ट बहुत हाई है, फिर बीच में कह दूं कि प्लस सेलिब्रिटीज दे आर ऑल्सो मैरिंग इन सीक्रेट, और फिर मैं बाद में कहूं कि एंजाइटी और प्रेशर भी रिलीज ईज आउट हो जाता है. So, this won't make really good sense. Why? Because उसके बाद भी जो हो रहा है ना कि they are becoming more common, people do not want this, then we are talking about something else. ये बीच में थोड़ा हल्का पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद फिर आप एक सॉलिड बोल रहे हो. सो नॉर्मली दिस इज हाउ व्हेनेवर यू प्रेजेंट एनी कॉजेस फॉर एनीथिंग, तो पहले इंपॉर्टेंट कॉजेस आते हैं, फिर आप एडिशनल कुछ उसके जैसा कुछ और बोलते हो. तो वो इसमें सेंस बन रही है, थर्ड में नहीं हो रहा है. सो आंसर इज सेकेंड ओनली. That is making a more coherent paragraph. So that is the reason why second is the answer. I hope you would have understood this question. Thanks for watching the video.